கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இன்றைக்கு உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைய சாட்சி தசம பாகத்தை பற்றிய ஒரு சாட்சி. ஏற்கனவே ஆல்ஃபிரட் டேவிட் பிரதர் ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதினால் அடைந்த ஆசீர்வாதத்தை சாட்சியாக கூறியிருந்தார். அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய எம்எல்ஏ சிஸ்டரும் கூட தசம பாகத்தை பற்றி ஒரு சாட்சி கொடுத்திருந்தாங்க. இன்றைக்கும் கூட தசம பாகம் கொடுப்பதற்காக நாம் எடுக்கின்ற முடிவினால் நமக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் என்பதை சகோதரி ஒருவர் நம்மோடு சாட்சியாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் சகோதரி கிஞ்சல் ஜான்சன் கோன்சால்விஸ். இவருடைய கணவரின் பெயர் சகோதரர் ஜான்சன் கோன்சால்விஸ். இவருக்கு 2 பிள்ளைகள். மூத்த மகனின் பெயர் சேன், அடுத்த மகளின் பெயர் எல்லோரா. இவர்கள் ஏற்கனவே வாரம் ஒரு சாட்சியிலே 2 சாட்சிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது 3வது சாட்சி. சாட்சி இந்தியில் தாங்க இருக்குது. நான் முதல்ல உங்களுக்கு தமிழில் முழுவதுமாக சொல்லிடுறேன். நீங்கள் கடைசி வரை பாருங்கள், கண்டிப்பாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சாட்சியில் சகோதரி கிஞ்சல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க ஏற்கனவே பல வேலைகளை பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் கடந்த வருஷத்தில் புதுதாக ஒரு வேலையில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த வேலையை தொடர்ந்து செய்கின்ற பொழுது குழந்தை உண்டாயிடுறாங்க. மார்ச் மாதம் அவங்களுக்கு டெலிவரி. பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? புதுசாக ஜாயின் பண்ண ஸ்கூலில் உங்களுக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவு கிடைக்காது. சகோதரி ஒவ்வொரு மாதமும் தசம பாகம் கொடுக்குற ஒரு பழக்கத்தை உள்ளவங்க. இப்போ மார்ச் மாதம் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி. இந்த மாதம் எனக்கு சம்பளம் வராது, நான் எப்படி தசம பாகத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னுட்டு. ஆனால் அதற்காக அவங்க ஜபிச்சிருக்காங்க. ஒரு சில காரியங்கள் என்னுடைய மனைவியோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்காங்க. எப்படி தெரியுமா? என் குழந்தைக்கு எல்லாரும் காசு கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதிலிருந்து நான் தசம பாகம் கொடுக்க போறேன்னு. அப்போ அந்த மகளுடைய அந்த வாஞ்சையை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா? மார்ச் மாதமும் அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து சம்பளம் போட்டாங்க. ஏப்ரல் மாதம் வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க, அப்பவும் சம்பளம் வந்துருச்சு. மே மாதம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மே மாதமும் சம்பளம் வந்தாச்சு. இதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம், சகோதரி கிஞ்சல் ஃபுல் டைம் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணலை, பார்ட் டைம் தான். ஆனால் ஃபுல் டைம் டீச்சருக்கு என்ன சேலரியோ அதே சேலரியை இவங்க மேனேஜ்மெண்ட் இவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு. இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா? அதாவது இவங்க 3 மாதம் வேலைக்கு போகலைன்னு சொன்னால் மேனேஜ்மெண்ட் இவங்க டெர்மினேட் பண்ணிட்டு இன்னொரு தடவை வேலைக்கு வச்சிருக்கணும். ஆனால் ஜூன் மாதம் இவங்களே வேலைக்கு கூப்பிடுறாங்க. சகோதரி மகிழ்ச்சியோடு போய் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அவார்டு கொடுத்து கௌரவிக்கிறாங்க. இதுதாங்க ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து சகோதரி பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதம். இந்த ஆசீர்வாதம் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா, தசம பாகம் தவறாமல் கொடுத்ததினாலும், எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் தசம பாகம் கொடுப்பேன் என்ற ஒரு எண்ணத்தை மனதில் வைத்திருந்ததினாலும், அதற்காக ஜெபித்ததினாலும் மாத்திரமே. நாமும் கூட தசம பாகம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி எடுத்தா அதற்குண்டான ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நீங்க இந்தியில சாட்சியை கேட்க போறீங்க. साक्षी सहोदरी சொல்லி முடிந்ததுக்கு அப்புறம் நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். नमस्कार, मेरा नाम किंजल गोंसाल्विस है और मैं आज आपके सामने मेरा टेस्टिमनी लेके आई हूँ। मेरा टेस्टिमनी बहुत ही अद्भुत है। एक्चुअली हमारा परमेश्वर ही इतना अद्भुत है, बस हमें उसकी बातों को सुनना है। बहुत बार हम हमारे हृदयों को इतना कठिन कर देते हैं कि हम उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और फिर हमारे जीवनों में आशीषें नहीं आती हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है और वो अद्भुत कार्य इसीलिए किया है कि मैंने उसकी आवाज़ को सुना है। मैं लास्ट 10 ईयर से मैं एज अ टीचर जॉब करती हूँ और मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी जॉब चेंज की है क्योंकि बेटर ग्रोथ के लिए। बट लास्ट ईयर मुझे इतना अच्छा जॉब मिला कि जो सैलरी में पूरा सुबह 7 से लेके 1 o'clock तक जो काम मैं करती थी वो काम अभी मेरा कम हो गया था। अभी मुझे ऐसा जॉब मिला था कि खाली मुझे 2 लेक्चर लेना था और वही सैलरी मुझे वो 2 लेक्चर लेके मिलती थी। मैं सुबह 7:30 बजे जाती हूँ और मैं 9-10 बजे घर आ जाती हूँ। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया है। मेरी हार्डशिप को उसने कम कर दिया है और उसके अनुग्रह से उसने मुझे भर दिया है। दूसरी बात, जब मैं जॉब पे लगी तब मेरा काम जब कम होने लगा, मैंने सोचा परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी आशीष दी है, अभी मुझे भी परमेश्वर पे विश्वास करना है। और मुझे मेरे जीवन में से बहुत सारी हमारे जीवन में तकलीफ़ें होती है। हम लोग हमारी सैलरी में से बहुत सारा खर्चा होता है, घर चलाना होता है, बहुत सारे बिल पे करने होते हैं, दवाइयों का खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। इसलिए हम लोग हमारे सैलरी में से दशांश नहीं दे पाते हैं। पर मैंने सोचा कि मेरा कितना भी खर्चा हो, मेरा घर में कितनी भी परेशानी होगी, पर मैं परमेश्वर का अधिकार कभी नहीं छीनूंगी क्योंकि मैं यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ। और उसने मुझे कहा है कि अगर तू मुझे दशांश देगी तो मैं तेरे घर को भर दूँगा आशीषों से। तेरे घर में कभी
प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे कि हम मलाखी में पढ़ सकते हैं, मलाखी की पुस्तक में है कि सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा दुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि तुम दशांश मेरे पास लेके तो आओ, मैं उसको किस तरह से आपके जीवन में आशीषों से भर देता हूँ। मैंने उसकी वो आवाज़ को सुना और पूरे मन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई भी तकलीफ़ आए, मैं देने के बाद ऐसा नहीं सोचूंगी कि मैंने क्यों दिया और मेरा ये कम हो गया या फिर क्यों मुझे वो पैसा मैं कहीं और जगह पे यूज़ करती थी। मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके दूंगी। मैं फ़िलहाल जो जॉब करती हूँ, वो परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा जॉब दिया, पर वो जॉब मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। और वो जॉब पे मैं लगने के बाद तुरंत मुझे एक बेबी कंसीव हो गया था और मार्च में मेरा डिलीवरी हुआ। मार्च में डिलीवरी होने के बाद मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी कि वो लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट था कि हम लोग आपको कोई और फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, आप जितना दिन आओगे उतना ही सैलरी हम लोग देंगे। 16 तारीख को मेरा डिलीवरी हुआ और अब मैंने सोचा कि अभी मेरा ये जॉब का मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या होगा, क्योंकि मेरा तो अभी डिलीवरी हो गया है, मेरा बेबी छोटा है, वो शायद मुझे जॉब पे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, या फिर अभी मार्च से लेके पूरा अप्रैल मई महीना तक मुझे बिना सैलरी के रहना पड़ेगा। ऐसा मैं सोचने लगी। मुझे विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने वचन दिया है कि तू तेरा दसमांश देगी तो मैं तेरे घर को भर दूंगा और मैं स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दूंगा, तेरे घर को कोई कीट ना लगेगा। तो फिर मैंने वो विश्वास को अपने मन में बनाए रखा और जैसे जैसे महीना ख़त्म होता था मैं देखती गई कि मेरे अकाउंट में सैलरी आती गई। अप्रैल एंड तक पूरा मई महीने तक मुझे मेरा सैलरी मिला और उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, इसलिए मई महीने में जॉब पे नहीं जाना और वो छुट्टी का हमको सैलरी नहीं मिलता था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर जून में मुझे अगर दशमांश देना है तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तो सैलरी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर को दूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग मुझे कॉल करके बुलाएंगे कि नहीं, क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी और मेरा भी डिलीवरी हो गया है। फिर उन्होंने जैसे मैंने वो दशमांश दिया और उन लोगों का कॉल आया कि आपको जून से ज्वाइन करना है, ऐसा करके मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो जॉब दिया और वो जॉब मेरे लाइफ में टिका के रखा। आज मेरा 2 बच्चा होने के बावजूद मैं सुबह जॉब पे जाके आती हूँ, वही सैलरी जो सैलरी में आज एक लेडीज़ कहीं पे भी जॉब करती है इंडिया में, तो एक लेडीज़ जो स्कूल में जॉब करती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20,000 सैलरी होता है और वो सुबह से जाती है 7:30 बजे से और 1-2 बजे आती है। वही जॉब मुझे परमेश्वर ने खाली 2 घंटे के लिए दिया और 2 घंटे में मुझे उतना ही सैलरी देते हैं। उसके साथ साथ जून में जब मैं जॉइंट हुई तो उन लोगों ने मुझे एक अवार्ड भी दिया। ये अवार्ड दिया मुझे मेरे लाइफ में पहली बार मिला है। मिसिस प्रेजेंटेड टू मिसिस किंजल गोंसाल्विस। मैं आपको रीड करके बताती हूँ उसके अंदर क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि एज वी सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ आवर स्कूल वी कन्वे आवर प्रोफाउंड थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर योर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड लॉन्ग ईयर ऑफ meritorious service. You have played a pivotal role in imparting knowledge to thousands of students who are grateful to you. We present this memento to you in appreciation of your association with us, as also for making a difference to our society. तो ये मेरे लाइफ का सबसे पहला मोमेंट्स है। ये मुझे परमेश्वर ने मुझे दिलाया है, जो मुझे मिला है मेरे स्कूल की तरफ से। तो परमेश्वर ने मुझे जॉब के साथ सैलरी के साथ मान सम्मान भी दिया है। मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ, आप अपने हृदयों को कठिन ना करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और परमेश्वर का जो अधिकार है वो परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। जय मसीह की। சகோதரி மூலமா அந்த சாட்சியை கேட்டோம் இல்லையா? இப்ப நாம ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்க போறோம். தேசத்திலே நிலத்தின் வித்திலும் விருஷங்களின் கனியிலும் தசமபாகம் எல்லாம் கர்த்தருக்குரியது.
அது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானது. லேவியராகமம் அதிகாரம் 27 இறைவசனம் 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. A reading from the book of Leviticus, chapter 27, verse 30. வசனம் சொல்றத பாத்தீங்களா? அதாவது நிலத்தின் வித்திலும் விருட்சங்களின் கனியிலும், அதாவது இந்த பூமியில வயல்ல இருந்து விளையிற எல்லா பயிர்களில் உள்ள வித்தலும் சரி, செடி கொடி மரங்கள் இவைகளிலிருந்து கிடைக்கிற கனிகளிலும் சரி, 10% ஆண்டவருக்குரியது அப்படின்னு சொன்னா, நமக்குண்டான வருமானத்திலும் கூட 10% ஆண்டவருக்குரியது. அதை நீங்க கொடுத்து பாருங்க, ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உண்டு. இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு சகோதரியையும் அவரது குடும்பத்தையும், சாட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். நாளைய தினத்திலே ஆகஸ்ட் 1 காலை 6 மணிக்கு நீங்கள் வாரம் ஒரு சாட்சியின் 4வது அனிவர்சரி நிகழ்ச்சியை காணும் வரை கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமென்.